गुजरात के राधनपुर में रिटायर्ड जेलर के घर फायरिंग कर नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई है। पाटन के राधनपुर की रामदेव टाउनशिप में फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिसमें अचानक रात के दौरान रिटायर्ड जेलर करशन देसाई के घर 5 से 6 लोगों ने पहुंचकर 2 राउंड फायरिंग की और उनकी 2 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया, जिससे गाड़ी के कांच भी टूट गए हैं। इस घटना से सोसाइटी में दहशत का माहौल फैल गया है। रिटायर्ड जेलर के.एल. देसाई ने मामले की शिकायत राधनपुर पुलिस में की है। राते फायरिंग थયું, લુકા તત્વો દાજીને કાતરી લઈને બૂમળો કરી અને ફાયરિંગ કર્યું મારા ઘર ઉપર। આ ઘુસમાં પહેવાના પ્રયત્ન કર્યા, જાળી બારીઓ તોડી નાખી છે। મારે કાકા કોઈ છોકરાને બોલાચાલી કંઈક થઈ હતી સામાન્ય, એમાં આણે આવું કર્યું છે। એમ છોકરાને મેં પૂછ્યું એટલે છોકરામાં ફાયરિંગ કર્યું હતું। નુકસાન જો જાળી તોડી નાખી, ઘરના બારણા તોડી નાખ્યા છે, ઘરની જાળીઓ તોડી નાખી છે, ગાડીના કાચ તોડી નાખ્યા, 2 ગાડીના કાચ સાફ કરી તોડી નાખ્યા છે, બરોબર। અને પછી એવું કહેતા હતા તમે બહાર નીકળો તો નથી મારી નાખવાના હતા, છોકરાને બહાર કાઢી મારી નાખવા છે। એમ ઈજાઓને તો નીચે નમી ગયો ને ઈજા થાય હતી ને, પણ પછી અમે બહાર બારણું ખોલ્યું નહીં, બારણું ખોલો ને તો મને એક હજારને નુકસાન કરો આ લોકો। રાધનપુર પોલીસને પડે નોંધાઈ ચાલુ છે, નોંધાઈ કાયદેસર કાર્યવાહી કર્યો, પણ આના માટે કડક પગલાં લેવા પડે। આજે આ કાયદાની વ્યવસ્થા લવે નહીં રહે, કેમ કે આ લોકો જો આવું લુખા તત્વ કરતા હોય અને જો કોઈના ઘરના फायरिंग सोसाइटीમાં करता હોય तो પછી કોઈનો કાયદાની વ્યવસ્થા જો દેખાતો જ નથી ને। गुजरात के नर्मदा के डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले अंकलेश्वर जीआईडीसी की डिटॉक्स कंपनी में हुए ब्लास्ट में 4 कामदारों की मौत हुई थी। ब्लास्ट की घटना के बाद चैतर वसावा अपने समर्थकों के साथ कंपनी पर पहुंचे थे। इस मामले अंकलेश्वर जीआईडीसी पुलिस थाने में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। ब्लास्ट के बाद पुलिस की ड्यूटी में रुकावट डालकर अन्य लोगों की जान खतरे में डालने की शिकायत खुद पुलिस सब इंस्पेक्टर ए.वी. शियालिया ने की है, जिस पर चैतर वसावा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી માં આવેલ ડેટોક્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં ગત તારીખ 3/12/2024 ના રોજ બપોરના 12:40 બ્લાસ્ટ થાય છે। ત્યારે ત્યાં કામ કરનાર કામદારના પરિવારનો સાંજે 4 વાગે મારા પર ફોન આવે છે। ત્યારે અમે કંપની પર 4:30 વાગ્યાના અરસામાં પહોંચીએ છીએ। ત્યારે ત્યાંના મેનેજમેન્ટ, ત્યાંના ઉપસ્થિત પ્રાંત અધિકારી, સેફટી અધિકારી અને પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓને અમે જણાવીએ છીએ કે કોનું મૃત્યુ થયું છે, કોને ઈજા થઈ છે, એની જાણકારી એમના પરિવારોને આપવામાં આવે। ત્યારબાદ 4 લોકોના મૃત્યુ થયા હોવાના નામ સહિતની જાણકારી ત્યાંના યુનિટ મેનેજર અમને આપે છે। એ પરિવારોને અમે બોલાવીએ છીએ। એમની દયનીય હાલત જોઈને કંપનીને અમે માનવતાની રાહે એ પરિવારોને વળતર આપે એવી માંગ કરીએ છીએ। વળતરની જાહેરાત થયા બાદ જ એ ડેડ બોડી અમે સ્વીકારીશું એવી અમે માંગ કરીએ છીએ। ત્યારે કંપની પણ એમના મેનેજમેન્ટ ઓથોરાઇઝ સાથે વાત કરીને એમને વળતરની જાહેરાત કરે છે। બાદમાં પીએમ કરાવીએ છીએ અને એને એ બોડીઓને અમે અગ્નિ સંસ્કાર માટે મોકલી આપીએ છીએ। ત્યારે અમે પોલીસ ભરૂચના એસપી શ્રીને પણ કહેવા માંગીએ છીએ, અમે 35 જેટલા વિડીયો જાહેર કર્યા છે જેનાથી એમની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે। એના કારણે જ અમારો અવાજ દબાવવા માટે એ આ ખોટી ફરિયાદો કરે છે। ત્યારે એમની આવી ખોટી ફરિયાદોથી અમે ડરવાના નથી। ભરૂચ પોલીસ વિભાગ અને એસપી માં પાણી હોય તો અમે 35 વિડીયો તમને આપેલા છે, જાહેર કર્યા છે। એ કયા અધિકારીઓ કોના માટે દારૂના ઠેકાઓ પર ઉઘરાણું કરે છે એના પર તપાસ કરે અને એમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે। गौरतलब है कि हाल ही में राजपारडी पुलिस थाने में बिना अनुमति के पदयात्रा निकाले जाने मामले भी एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई थी। गुजरात के सूरत में पीपी सवानी ग्रुप द्वारा इस बार भी 111 बेटियों के विवाह पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। सूरत में पीपी सवानी ग्रुप हमेशा ही सामाजिक गतिविधियों में काफी अव्वल रहता है। इस बार भी पीपी सवानी ग्रुप द्वारा 111 बेटियों की शादी करवाई जा रही है, जिस पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल, गुजरात राज्य के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सी आर पाटिल साहब और आदरणीय महंत और परम आदरणीय परम पूज्य श्री मुरारी बापू के साथ में अन्य सौराष्ट्र के 40 संत भी आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं। ये लग्नोत्सव के अंदर 2 मुस्लिम बेटियां और बंगाल की बेटी, महाराष्ट्र की 5 बेटी, यूपी की 2 बेटी सहित गुजरात के अलग अलग जिलों में से सभी बेटियां का विवाह ये लग्न के अंतर्गत होने वाला है। सूरत के हमारे जो आईपीएस ऑफिसर है, हेतल बेन है, अनिता मैडम है, भक्ति बेन है और साथ में सूरत के डीडीओ गोयल मैडम है
और सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी बेन अग्रवाल के साथ में जो बहने हैं वो मेहंदी रस्म में सबको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। और ये शादी में 3 रिकॉर्ड बनने वाले हैं। उसमें आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी का जो सूचन है वृक्षारोपण का, वो अंतर्गत तुलसी के पौधे जितने भी लोग आएंगे 40 से 50 हजार जो पब्लिक आएगी वो सभी को एक एक तुलसी माँ का रोपा दिया जाएगा, वो भी एक रिकॉर्ड होगा। और दूसरा रिकॉर्ड 370 फीट का एक लंबा तोरण शादी के माहौल में वो लगाया जाएगा, वो भी एक रिकॉर्ड होगा। और तीसरा रिकॉर्ड कि एक ही परिवार के द्वारा, एक ही पापा के द्वारा 5274 बेटियों को विदा करने का और उसकी केयर करने का जो रिकॉर्ड है वो भी पीपी सवानी ग्रुप को एनायत किया जाएगा। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। कांग्रेस पार्टी रोज रोज संसद में अलग अलग रूप से प्रदर्शन करते हुए देश के नागरिकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आज उन्होंने संसद में ऐसा ही कुछ अनोखा प्रदर्शन किया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन रहा, जहां अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। आज विपक्षी सांसद संसद परिसर में तिरंगा और फूल लेकर पहुंचे और सत्ता पक्ष के सांसदों को दिए। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर भी संसद में हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, इसके बाद 12 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर राज्यसभा में कहा कि 72 साल बाद किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना, ऐसा सभापति मिलना मुश्किल है।
विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच रिश्ता क्या है, उन्हें ये बताना चाहिए। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। सर, भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेत्र और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरा कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूँ सर। दरअसल 11 दिसंबर को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी PC मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस नोटिस में कांग्रेस, TMC, आप, सपा, DMK, CPI, CPIM और RJD समेत विपक्षी पार्टियों के 60 सदस्यों के दस्तखत हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते। पत्नी और ससुराल वालों से पीड़ित AI इंजीनियर की खुदकुशी मामले, पुलिस ने कानूनी कार्यवाही शुरू की है। बेंगलुरु में AI इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में 4 लोगों पर FIR दर्ज की गई है।
एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई। अतुल ने ये भी मांग की थी कि अगर उन्हें प्रताड़ित करने वाले बरी हो जाएं, तो अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाएं। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide and I think they are right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm going कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने आज फतेहगंज रोड से निजामपुरा महसाणा नगर तक के अस्थायी अतिक्रमण हटाए। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इन दिनों वडोदरा के सभी इलाकों में किए गए अतिक्रमणों को हटाने का बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत कार्यकारी वार्ड नंबर 1 में शामिल फतेहगंज से निजामपुरा महसाणा सर्कल तक सड़क के किनारे लगाए गए अस्थायी ठेले और शेड्स को हटा दिया गया। चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ अवैध रूप से बनाए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही करते हुए सामान जब्त किया गया। મહેસાણા નગર 4 રસ્તા સુધીની હંગામી દબાણો હટાવવાની કામગીરી ચાલુ છે। અમને તો કશું મળ્યું નથી, જે પરચુનો સામાન છે એ જમા લીધો। કામગીરી ચાલુ કરી છે, જે મળશે એ લઈ લેવાશે। સાહેબ, આ બીજી જે કામગીરીઓ થઈ છે શહેરમાં, આ એનો અસર છે, એટલે દબાણો ઓછા થઈ ગયા છે। પબ્લિક છે, પબ્લિકની જાન થઈ જાય છે, બીજે કામગીરી થઈ છે એની આ અસર છે।